Hello everyone. This side Poonam Grover from St. Andrews Institute of Technology and Management, Farooq Nagar, Gurugram. Today I start with my lecture number 21, which are based on digital communication for the ETC 6 semester student. So today's lecture I have covered many topics which are related to Unit 3, that is symbol error rate, probability of error, and geometric interpretation of signals. So all these topics are related to your various BPSK, QPSK, and you can say your BFSK schemes. So explaining the symbol error rate and probability of errors, that should be explained with the help of your BPSK and QPSK. And also you can find the symbol error rate with the help of your various assumptions. Also, we can calculate the geometric interpretation of the signals, how the signal should be represented, and how the noise is mixed with your signal when the signal is received by your receiver. So, firstly, we cover with your symbol error rate. So, symbol error rate. What do you mean by symbol error rate? That give me the information about how much error, or you can say how much error that should be present either in QPSK at receiver side or BPSK at the receiver side. So we can find also the probability of error with some function, and in case of, so we can share the example to explaining your symbol error rate plus probability of error with the help of your M array MSK. So M array, that is called your MSK, stand for your M array phase shift king. So whenever your phase changes greater than your four parts, in that case that is called your M array phase shift king. So in M array phase shift king, its name is phase shift king. So in which having not change in amplitude but change in phase angle should be done. So here we show one example having, if you taking M is equal to 4, it means your angle is phase angle, you should be say that is 2 pi by M into may I. So 2 pi by I is going from your 0 to n minus 1, and m changes as per your number of faces. So when m taking 4 faces, in that case you can give your two combination of your faces, either 000111 and 10. So in which having phi is equal to 2 bit. When we taken the phi is equal to 2 bit in which having 4 faces, so m is equal to 4 we have taken in my taken in my phenomena. So in that case you can say your phase angle is 2 pi I by m, and here pi is 180 degree, and I changes from your 0 to I changes from your 0 to m minus 1, and m is depends upon number of phase angle per bit. If you're taking phi is equal to 2 bit, you can say in M array PSK your phase changes. So you have taken the example here phi with 2 bit. So when phi with 2 bit, in which having four number of cases, 000111 and 10, so you are came under your four phases. Okay, so that's why here we show one example, that is your phase angle is 2 pi I by m. If you are taking the example with I is equal to m minus 1, then first you're taking the value I is equal to 0. In that case all of the angle is equal to 0. ठीक है, अब उसके बाद अगर आप I की वैल्यू 1 लेते हैं तो वो आ जाएगी आपकी 2 पाई बाय m. क्लियर? देन उसने क्या किया, I की वैल्यू अगर m माइनस 1 तक ले रहे हो, कुछ डिजायर्ड लिमिट तक ले रहे हो, तो 2 पाई बाय m I की जगह क्या पुट कराओगे, m माइनस 1. इट मीन आपका एंगल बन जाएगा 0. आई पे 0 है तो वो 0 आया, अगर आई 1 है तो 2 पाई बाय m आया, तो इट मीन 0 2 पाई बाय m टू 2 पाई बाय m into में m minus 1. So in that is called your that case you should be considered in your QPSK, you can say quadrature phase shift king. You are coming with your four phases when, but in case of your BPSK you are coming with your m is equal to 2. If m is equal to 2, you only consider the angle that is 0 and 180 degree. Here we show the example for your QPSK. So if you put the value here m is equal to 4, so in that case your angle will be
come under with the 4 faces. But in case of your BPSK, you are having the value either 0 or either 0 or 2. So if you putting the value I is equal to 0 or 2, in that case you are having angle 0 and 180 degree. In so here we putting the value of I is equal to 0. अगर मैं I को 0 पुट करती हूँ तो वो पूरा वैल्यू कितना आ जाएगा एंगल का, वो 0 आएगा. लेकिन अगर मैं I की वैल्यू 2 पुट करती हूँ, दैट इज 4 पाई बाय m, और m आपका क्या है, 2 है अगेन. क्लियर. तो अगर आप 2 पाई बाय 2 पुट करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. ओनली क्या बचेगा आपका, पाई बचेगा. और आई की वैल्यू नेक्स्ट किसके लिए क्या ले रहे हो आप, 1 ले रहे हो. ठीक है, पहले आई की वैल्यू 0 ली तो पूरा फंक्शन 0 हो गया. अगली बार आपने क्या किया, 2 पाई आई की वैल्यू 1, एम की वैल्यू कितनी ली है आपने, 2 ली है, तो हमने 2 पुट करवा दिया. 2 से 2 कैंसिल हो गया, ओनली एंगल क्या रह गया, पाई. तो एक एंगल आया आपका 0 डिग्री और एक क्या है आपका 180 डिग्री. तो ये किस केस में पॉसिबल है, आपके बीपीएस के में. ठीक है, तो मुझे 2 पॉइंट्स मिले कहाँ पे, 0 पे और 2 पे. 0 पे 0 डिग्री मिला है और 2 पे आपका यू कैन से m इज इक्वल टू 2 पे कितना मिला है आपको, 180 डिग्री मिला है. ठीक है, तो आपने इस चीज को बीपीएसके के लिए आपने एक कंसोलेशन डायग्राम बनाया. उस डायग्राम के अंदर वो ये कह रहा है कि आपकी दो वैल्यू आई हैं, एक तो आई इज इक्वल टू 0 पे आई है और एक आई इज इक्वल टू कितने पे आई है, 2 पे आई है. ठीक है. ठीक है, तो अगर आप आई की वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू आपने 0 पुट की. ठीक है, अगर आई की वैल्यू 0 पुट करे तो 2 पाई बाय m. ठीक है, m कितना है आपका, 2 है. तो 2 बाय 2 इंटू में 0, सारा एंगल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा. तो कॉन्स्टलेशन डायग्राम के अंदर एक एंगल आपका कब आया, व्हेन आई इज इक्वल टू 0 है. ठीक है, अगली बार आपने आई की वैल्यू क्या पुट की है, 1 पुट की है. आई की वैल्यू 1 पुट करोगे, यहाँ m की वैल्यू कितनी पुट करोगे, m की वैल्यू आई की वैल्यू 1 तो कितनी आ जाएगी, ये वाली 2 पाई. आई की वैल्यू 1 पुट की तो ये आ जाएगी 2 पाई बाय m. तो वो 2 पाई बाय m आपका कॉन्स्टलेशन डायग्राम के अकॉर्डिंग यहाँ कहीं लाई करेगा. तो मैंने इसको सर्कुलर मोशन में लिया है इन केस ऑफ वेयर m मेरे पीएस के. फिर आपने i की वैल्यू कितनी पुट की है, 2 पुट की है. अगर आप i की वैल्यू 2 पुट करते हो इस इक्वेशन में तो 2 पाई इंटू 2 4 पाई बाय m आ जाएगी. तो वो भी 2 पाई से आगे कितना आ जाएगा आपका, 4 पाई बाय m. तो एक एंगल आपका 0 बना जो कि i इज इक्वल टू 0 पे बना. जब i इज इक्वल टू 1 रखा तो एंगल क्या बना आपका, 2 पाई बाय m. जब i इज इक्वल टू 2 रखा तो एंगल कितना बना, 4 पाई बाय m. सो दैट कॉन्स्टलेशन डायग्राम एज पर योर m एरे BPSK और यू कैन से BPSK, यू आर टेकिंग विद द हेल्प ऑफ योर सर्कुलर कॉन्स्टलेशन. ठीक है. तो आपने आपके दो एंगल आपने कवर किए हैं, 0 डिग्री एंड 180 डिग्री. तो मैंने जो ये आपने डायग्राम बनाया है, इसको फर्स्ट एंगल जो है आपका 2 पाई बाय m आया है. क्लियर. तो अगर मैं इस डायग्राम को ओनली इस पार्ट को कंसिडर करूं, इस पार्ट को, क्लियर, तो इस पार्ट का जो ये वाला है, ये वाला है, ये चीज, ये क्या है आपकी इन फेस है और ये वाली क्या है, आउट ऑफ फेस है. तो मैंने इसको कुछ इस तरह से ड्रा कर लिया. जो इस तरफ आ रही है वो इन फेस होगी आई के साथ और जो इस तरफ आ रही है वो आपकी क्या होगी, आपकी आउट ऑफ फेस होगी. क्लियर. उसके बाद आपने क्या किया, सेंटर में एक क्या ड्रॉ कर लिया, उसका रेडियस ड्रॉ कर लिया ए. क्लियर. तो सेंटर में मैंने उसका क्या ड्रॉ किया है, रेडियस ड्रा किया है. वो रेडियस मैंने यहाँ कहीं ड्रा किया है, ये वाला यहाँ पे. क्लियर. इट मीन्स आप ओनली इस पार्ट को कंसिडर कर रहे हो फर्स्ट केस के अंदर, इस पार्ट को. ठीक है, जहाँ पे आपके आई की वैल्यू क्या है, 0 है, जो कि इन फेस है. इन फेस है तो वो अपोजिट फेस के होंगे तो कैंसिल हो जाएंगे. और उसके बाद यहाँ पे वैल्यू क्या आई है, अपोजिट फेस होने के कारण 2 पाई बाय m आई है. तो वैल्यू मैंने यहाँ डाल दी उसकी. क्लियर. और जो उसके बाद वाला फेस है वो आपका ये वाली वैल्यू आ जाएगी. ठीक है. तो अब उसने क्या किया, उसने इस एम्पलीट्यूड के कोरस्पॉन्डिंग, अगर मैं एम्पलीट्यूड यहाँ लगाती सेंटर में, ठीक है, उस एम्पलीट्यूड से उसने उसने जो आउट ऑफ फेस है उसके साथ एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दी, दैट वन. ठीक है. तो जो इन फेस है वहां एक कोऑर्डिनेट आ गया आपका ए आई और जो आउट ऑफ फेस है वहां एक कोऑर्डिनेट क्या आ गया आपका बी आई. क्लियर. तो ये कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू दिस एंगल प्रोजेक्शन, क्लियर, लाइक उसने ओनली क्या किया है, आपने आई की दो वैल्यू ली है, आई इज इक्वल टू 0 पे. ठीक है. आपने सिंपली इस डायग्राम को इस वे से यहाँ ड्रॉ किया है. ठीक है. तो ये जो वाला हो जाएगा वो आपका इन फेस हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा, आउट ऑफ फेस हो जाएगा. वही सेम चीज यहाँ ट्राई की हुई है. ठीक है. बीच में उसने यहाँ पे अलग पार्ट से दिखाया हुआ है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होता है, उसका रेडियस होता है. तो मैंने यहाँ इसके सेंटर में ड्रा कर दिया. अब जहाँ रेडियस आपका सेंटर पार्ट पे कट कर रहा है, उस सेंटर पार्ट से जो ये वाला होगा पार्ट,
इस तरफ वाला वो आपका बी वेक्टर माना जाएगा, और जो इस तरफ वाला पार्ट होगा वो क्या माना जाएगा, आपका ए वेक्टर माना जाएगा। ठीक है, तो मैंने लिख दिया है, जो इन फेस है वो आपका ए आई है, और जो आउट ऑफ फेस है वो आपका क्या है, बी आई है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग आपके ए आई की वैल्यू क्या होती है, ए कोस 2 पाई/m इंटू आई। क्लियर, ऐसे बी आई की वैल्यू क्या होगी, ए साइन 2 पाई/m इंटू आई। क्लियर, अब मैंने जो अपना ट्रांसमिटेड वेवफॉर्म में सिग्नल लिख रखा है, ट्रांसमिट कब सिग्नल होता है, जब वो मॉड्यूलेट होता है। तो आपने अपने मैसेज सिग्नल को phi 1 and phi 2, these are called your quadrature carrier, and that should be modulated with the help of your AI and BI। क्लियर, आपके दो कोऑर्डिनेट मिले, उन दो कोऑर्डिनेट्स को आपने फेस एंगल के साथ क्या किया है, मॉड्यूलेट किया है। ठीक है, जब इसको फेस एंगल के साथ मॉड्यूलेट किया, तो आप अगर आपको पता है कि आपका phi 1t क्या होता है, दैट इज √2/√t कोस ऑफ 2 पाई/f/c/t। क्योंकि अगर वो इन फेस है तो phi 1 है, आउट ऑफ फेस है तो उसका एंगल चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो वो क्या आएगा, आपका phi 2 आ जाएगा। तो उसको कोस के रिवर्स में लिखोगे, कैसे लिखोगे, 2/t कोस का क्या बन जाएगा, साइन 2 पाई/f/c/t। ठीक है, तो यहाँ जो आपके एंगल हैं ये वाले phi 1 और phi 2, दीज वैल्यू, ये वाली दो वैल्यू उनकी है एंगल की, और ए आई और बी आई जो आपके कोऑर्डिनेट्स निकले हैं उनकी वैल्यू ये वाली है। क्लियर, तो हम इन कोऑर्डिनेट्स को विद कैरियर के साथ क्या करेंगे, मॉड्यूलेट करेंगे। उसके बाद ये जो पूरा एक्सप्रेशन बनेगा वो किसके लिए बनेगा, आपका ट्रांसमिटेड सिग्नल एक्स ऑफ टी के लिए। क्लियर, ये सारा फिनोमेना आपके सिंबल एरर रेट को कैलकुलेट करने के लिए किया जा रहा है। तो अब हमने क्या किया, phi 1 एंड phi 2 दिस आर कॉल्ड क्वाड्रेचर कैरियर, और ए आई और बी आई क्या है, कोऑर्डिनेट्स हैं। हमने इनको क्या किया, मॉड्यूलेट किया, और हमारा ट्रांसमिटेड सिग्नल क्या बन गया, एक्स ऑफ टी। सो बिफोर कैलकुलेटिंग योर सिंबल एरर रेट, यू फर्स्ट फाइंड द एनर्जी ऑफ ट्रांसमिटेड सिग्नल। देन हाउ यू फाइंड द एनर्जी ऑफ ट्रांसमिटेड सिग्नल, ES, as per your signal system, ES should be present your इन माइनस इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर टी इंटू में डी टी। तो एक्स की वैल्यू अभी आपने लिखी है, वो वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए, दैट इज यहाँ पुट करवा दी मैंने एक्स की जगह। तो वो क्या हो जाएगा आपका, ए आई phi 1t एंड बी आई phi 2t, ये वाली वैल्यू यहाँ कर दी। अब यहाँ पे एक्स का स्केयर है तो इस पूरे फंक्शन क्या क्या हो जाएगा, स्केयर हो गया। अब इस स्केयर को आप खोलो, ठीक है, खोलोगे तो कैसे लिखे जाओगे आप, ए आई phi 1t का स्केयर, देन बी आई phi 2t का स्केयर। क्लियर, इंटू में 2ai bi phi 1t इंटू में phi 2t, दैट इज फॉर्मूला फॉर योर a प्लस बी स्केयर। अब इसके ऊपर अगर जब आपने इंटीग्रेशन अप्लाई किया ये वाला, उस इंटीग्रेशन के थ्रू जो आपकी कांस्टेंट टर्म्स थी वो आपकी बाहर आ गई। यहाँ से ए आई वेक्टर बाहर आ गया, यहाँ से बी आई, और यहाँ से 2ai bi। ठीक है, तो ये क्या है, phi 1 एंड phi 2 क्या है आपके, दीज आर कॉल्ड योर ऑर्थोगोनल फंक्शन। सो तो ऑर्थोगोनल फंक्शन दोनों क्या होते हैं, आउट ऑफ फेस होते हैं, वो दोनों क्या हो जाएंगे, आपके कैंसिल हो जाएंगे। ओनली आपके दो फंक्शन ऊपर वाले बचेंगे, विद वेक्टर ए आई स्क्वायर प्लस में बी आई स्क्वायर, विद फेस एंगल phi 1 स्क्वायर प्लस में phi 2 स्क्वायर। तो आपके जो एंगल है, आपने ई एस की वैल्यू निकाली, उस ई एस की वैल्यू को क्या लिखा है आपने, ए आई स्क्वायर प्लस में बी आई स्क्वायर। क्लियर, आपकी एनर्जी की वैल्यू क्या आई है, ए आई स्क्वायर प्लस में बी आई स्क्वायर। और पीछे जब आपने ए आई और बी आई का फॉर्मूला लिखा था, तो क्या लिखा था, ए आई क्या होता है, ए कोस 2 पाई/m इंटू आई, एंड बी आई इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई/m इंटू में आई। क्योंकि मैंने यहाँ पे लाइक अभी वैल्यू पुट नहीं की आपके phi 1 phi 2 की, और ना ही ए आई बी आई की वैल्यू की, सिंपली उस एक्सप्रेशन को खोला है और वहां से मैंने एनर्जी को कैलकुलेट किया है। तो मुझे पता है कि मेरे ए आई और बी आई की वैल्यू क्या है प्रीवियस वन से, तो मैंने ये वैल्यू यहाँ पुट करवा दी, ए आई की जगह ये वाला पार्ट और बी आई की जगह ये वाला पार्ट। ठीक है, तो जब मैंने इसको पुट करवाया तो क्या हुआ, आपका क्या है, ए आई स्केयर प्लस में बी आई स्केयर आया। तो ए आई स्केयर का फॉर्मूला क्या बनेगा, ए स्केयर कोस स्केयर 2 पाई/m इंटू आई, एंड बी आई का क्या बनेगा, ए स्केयर साइन स्केयर 2 पाई/m इंटू में आई। ठीक है, इसके बाद आपने क्या किया, इसको पूरा एक्सपेंड किया। एक्सपेंड करने के बाद क्या होगा, कोस स्केयर प्लस साइन स्केयर वन हो जाएंगे, और आपका फॉर्मूला बनेगा एनर्जी सिग्नल की फॉर्म में ए स्केयर बचेगा ओनली। क्लियर, तो ए स्केयर को जब इस तरफ लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा आपका √of ES। तो ये आपकी क्या आ गई है, सिंबल एनर्जी आ गई है। ठीक है, ये सिंबल एनर्जी आपके सिंबल एरर रेट को निकालने में हेल्प करेगी। ठीक है, तो सिंबल के आपके दो कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं, ए आई एंड
BI। ठीक है, तो आपने उन दो कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू आपको पता है, a cos 2 पाई बाय m इंटू आई एंड b sin 2 पाई बाय m इंटू में i। ठीक है, तो अगर हम i की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक ले रहे हैं, 0 to m-1 तक ले रहे हैं। क्लियर, तो उसने क्या किया, जब आप दो कोऑर्डिनेट्स कंसीडर कर रहे हो, ठीक है, तो आपने सिंपली क्या करना है, आपकी एनर्जी ए की वैल्यू क्या है, ई एस आई है, तो आपके कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू क्या है, a cos 2 पाई बाय m इंटू आई एंड b sin 2 पाई बाय m इंटू आई। तो यहाँ पे आपने ओनली ए और बी की वैल्यू पुट की है। क्लियर है, आपकी ए की वैल्यू क्या आई है, रूट ऑफ ई एस, तो यहाँ पे रूट एस ई एस, ठीक है, जो कि इसका मैग्नीट्यूड आया है, ए की वैल्यू आई है। इस केस में अगर आपने कोस के केस में मैग्नीट्यूड को ए मांगना है, उसके एम्पलीट्यूड को ए माना है, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड को क्या मानोगे, बी मानोगे, वो भी क्या होगा आपका रूट ऑफ ई एस। तो सिंपली कुछ नहीं किया, ए की जगह और बी की जगह आपने रूट ऑफ ई एस वैल्यू पुट की है। ठीक है, उससे आपका जो ये वाला वेक्टर आएगा वो आपका क्या आ जाएगा, ए आई, और ये वाला क्या आ जाएगा आपका बी आई। ठीक है, सो एज पर योर क्वाड्रेचर फेज शिफ्ट किंग, आपका एनर्जी सिग्नल क्या आया है, इन द फॉर्म ऑफ ए इज इक्वल टू रूट ऑफ ई एस। सो जब हम इस एनर्जी सिग्नल को आप ट्रांसमिट करोगे विद द हेल्प ऑफ योर गॉसियन नॉइज प्रेजेंट इन वाइट गॉसियन नॉइज होती है, जो आपके चैनल में मैक्सिमम प्रेजेंट ही होती है, तो जो सिग्नल आपका रिसीव होगा वो क्या होगा, आपका मैसेज सिग्नल प्लस सम noise, so that noise is called your amplitude wide Gaussian noise। क्लियर है, पहले हमने ट्रांसमिटेड साइड से उसकी एनर्जी को कैलकुलेट किया। ठीक है, अब वो एनर्जी जब ट्रांसमिट हुई है इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल एक्स ऑफ टी, जो आपने पीछे एक्स ऑफ टी की वैल्यू निकाली है ये वाली, वो आपकी क्या हो जाएगी, एक्स ऑफ टी आपने बोला था दैट इज इक्वल टू यर ए आई एफ वन टी प्लस बी आई एफ टू टी। उससे जो एनर्जी निकली उसको आपने क्या किया, ट्रांसमिट कर दिया, और जब रिसीवर ने उस एनर्जी को रिसीव किया तो क्या हुआ, उसके अंदर कुछ नॉइज भी ऐड हो गई। ठीक है, तो इस नॉइज को कैलकुलेट करने के लिए सेम रिसीवर साइड पे भी हम दो प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर यूज करेंगे, यानी कि दो कोरिलेटर यूज करेंगे। ठीक है जी, तो आपने रिसीव सिग्नल दिया, ठीक है, उस रिसीव सिग्नल को आपने एक तरफ फाइव वन दिया और दूसरी तरफ क्या दिया, फाइव टू दिया है। तो एक प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर ये वाला है और दूसरा कौन सा है आपका, ये वाला है। उसके बाद आपने इन दोनों का प्रोडक्ट करने के बाद उस फंक्शन को किसी इंटीग्रेटर के थ्रू क्या किया है, पास किया है, सेम एज फॉर आर वन टी एंड सेम एज फॉर योर आर टू टी। क्लियर, सो आपका जो आपका आर वन टी आएगा आउटपुट पे, ये कैप्स टी है, सॉरी यहाँ पे कैप्स टी आएगा दोनों साइड पे, तो जो आपको यहाँ रिसीव्ड सिग्नल मिलेगा वो क्या मिलेगा, रिसीव्ड सिग्नल इनटू में एंगल दैट इज फाइव वन टी। क्लियर, सेम एज फॉर इसके लिए क्या बनेगा, रिसीव्ड सिग्नल इनटू में एंगल फाइव टू टी। क्लियर, लेकिन जब आप इसको ट्रांसमिट करोगे तो उसमें आपने बोला कि कुछ नॉइज भी ऐड हो जाती है आपके मैसेज सिग्नल के साथ, लेकिन आपका जो रिसीव्ड सिग्नल है वो क्या मिला, आपको मैसेज सिग्नल मिलना चाहिए जो आपने ओरिजिनल दिया था, लेकिन उसमें ओरिजिनल में कुछ नॉइज क्या मिली है आपको, ऐड होके मिली है। बाकी सेम एंगल फाइव वन टी इंटू में डी टी। क्लियर, ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं किया आपने, एक्स ऑफ टी की वैल्यू जो पीछे लिखी है दैट इज इक्वल टू ए आई एंड फाइव वन टी एंड बी आई प्लस फाइव टू टी। सो फाइव वन एंड फाइव टू इज कॉल्ड योर quadrature carrier with perform the modulation with the help of your AI and BI। इट मीन्स AI और BI हमारे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल हैं जो कि 5-1-5-2 के साथ क्या कर रहे हैं, अपनी मॉड्यूलेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो अगर हमने वो चीज मॉड्यूलेशन परफॉर्म की है तो इस साइड पे वो क्या परफॉर्म करेंगे, आपकी डीमोडुलेशन परफॉर्म करेंगे। क्लियर, तो आपने क्या किया, सेम आपके रिसीव्ड सिग्नल क्या होना चाहिए, जो आपने ओरिजिनल दिया है वो क्या है आपका एक्स ऑफ टी, उसमें जब कुछ नॉइज ऐड होगी इनटू में फाइव वन टी प्लस में डी टी आ गया। ठीक है, अब आपने यहाँ पे एक्स ऑफ टी की जब वैल्यू पुट की तो वो क्या आ गई आपकी, ए आई फाइव वन टी एंड बी आई फाइव टू टी इंटू में फाइव वन टी डी टी प्लस में सम नॉइज भी मिलेगी एन ऑफ टी। ठीक है, अब आप इस फॉर्मूले को कैलकुलेट कीजिए, तो कैसे करोगे आप, इसमें जब जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो फिक्स हैं उसको हम बाहर निकाल लेंगे, तो वहां से क्या आएगा, ए आई आ जाएगा फ्रॉम जीरो टू टी फाइव वन टी का स्क्वायर इंटू में डी टी, और यहाँ से बी आई आ जाएगा, वो क्या बनेगा, फाइव टू का स्क्वायर फाइव टू इंटू में फाइव वन टी इंटू में डी टी। क्लियर, प्लस में जब इस फंक्शन का करोगे तो क्या हो जाएगा, एन ऑफ टी तो है ही है, इंटू में क्या आ जाएगा, फाइव वन टी इंटू में डी टी, यानी कि हमने सिंपली इस फंक्शन को ओपन किया है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा। क्लियर,
नहीं 5 1, क्योंकि इस फंक्शन को सॉरी अंदर लेके गए हैं, तो यहाँ 5 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे क्या बनेगा बी आई बाहर आएगा 5 2 इंटू में 5 1 विच इज हेयर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या मिलेगा n1t 5 1t इंटू में dt। क्लियर। अब अगर देखा जाए तो ये वाला फंक्शन जो है एज पर दी ऑर्थोनॉर्मल प्रॉपर्टी, ये फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, जहाँ स्क्वायर हो वैल्यू इक्वल टू 1 हो जाती है, और एज पर दी ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी, ठीक है, 5 2 एंड 5 1, ठीक है, बोथ आर अपोजिट विद ईच अदर। ठीक है जी, तो क्या होगा आपका, ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल टू क्या हो जाएंगे आपके 0 हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि उसने ये बोला है कि अगर आपकी ये दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं है तो 0 है, अगर इक्वल है तो उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। क्लियर। फिर उसके बाद लास्ट फंक्शन आपका क्या बचा, नॉइज की फॉर्म में। क्लियर। तो आपके दो फंक्शन आए हैं जिसमें इस फंक्शन की वैल्यू एज पर दी ऑर्थोनॉर्मल प्रॉपर्टी 1 हो गई है, ओनली ए आई बचा, वो ए आई उसने लिख दिया, प्लस इस पार्ट में आपका क्या बचेगा, एन आई बचेगा। क्लियर है। इट मीन्स आपको रिसीव्ड सिग्नल मिला विद नॉइज। क्लियर। तो अगर आप इस डेल फंक्शन को लिखोगे तो उसके अंदर आपका 0 मीन होगा और नॉइज का वेरिएंस कितना होगा, n0 बाय में 2। क्लियर। इसका मतलब जो अगर आपको रिसीव सिग्नल R1 क्या मिला, ए आई प्लस में एन आई का डेल्टा, और डेल्टा क्या है 0 विद मीन एंड n0 बाय 2 विद वेरिएंस। सेम आपको R2 भी वही मिलेगा। R2 क्या मिलेगा, बी आई, ए आई की जगह बी आई हो जाएगा, और n1 की जगह क्या हो जाएगा यहाँ पे n2 हो जाएगा, और जो n2 है उसका वेरिएंस क्या मिलेगा आपको, विद 0 एंड n0 बाय में 2, 0 उसका मीन हो जाएगा, n0 बाय 2 क्या हो जाएगा उसका वेरिएंस हो जाएगा। तो इस चीज को क्लियर करने के लिए रिसीव्ड सिग्नल को हमने फिर एक कॉन्स्टलेशन डायग्राम बनाया है। उस कॉन्स्टलेशन डायग्राम के अंदर मैंने क्या किया है, आपने क्या किया है, आपने सिंपली एक कोऑर्डिनेट्स बनाया एज पर लाइन योर क्रॉस लाइंस। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ कोई रिसीव्ड सिग्नल लिया। ठीक है, उस रिसीव्ड सिग्नल की वैल्यू क्या है, R1 और R2t। अब आपको क्या करना है, उस रिसीव्ड सिग्नल का, ठीक है, हम मान के चलते हैं कि हमारा कोऑर्डिनेट ए आई बी आई कहीं यहाँ लाई कर रहा है। ठीक है, 0 एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो अगर वो कोऑर्डिनेट 0 एक्सिस पे लाई कर रहा है, क्लियर, तो क्या होगा, हमने उस कोऑर्डिनेट की जहाँ पे वो सिग्नल रिसीव हुआ है उससे डिस्टेंस मेजर करना पड़ेगा हमें। क्लियर है। तो एक तो ये वाला डिस्टेंस होगा, उसके बाद अगर मान लो ये हर एक एंगल के 4 कोऑर्डिनेट होते हैं। ठीक है, एक कोऑर्डिनेट यहाँ हुआ है जो आपने एज्यूम किया, वो क्या हमारा ए आई एन बी आई, रिसीव सिग्नल मुझे यहाँ कहीं मिल रहा है। ठीक है, R1 और R2 पे, तो जहाँ रिसीव सिग्नल मिल रहा है रिसीव सिग्नल का हर एक कोऑर्डिनेट पे आपको डिस्टेंस मेजर करना पड़ेगा। दैट इज फर्स्ट कोऑर्डिनेट, फर्स्ट डिस्टेंस, दैट इज सेकंड डिस्टेंस रिसीव सिग्नल से ये वाले कोऑर्डिनेट तक, और ये वाले कोऑर्डिनेट से इस कोऑर्डिनेट तक क्या आ जाएगा आपका D3 हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, रिसीव सिग्नल से ये वाला D4 हो जाएगा। तो इस तरह आपके 4 डिस्टेंस आ गए हैं, D1, D2, D3 एंड योर D4। लेकिन इसमें आपने जो अपने कैलकुलेशन के अंदर काउंट करना है वो सबसे मिनिमम डिस्टेंस काउंट करना है कि आपका मिनिमम डिस्टेंस कौन सा है। तो एज पर दी फिगर के अकॉर्डिंग आपको मिनिमम डिस्टेंस कौन सा मिल रहा है, D1 मिल रहा है। ठीक है, तो हम D1 को अजम्पशन में लेके कैलकुलेशन को आगे कैरी करेंगे। तो D1 को उसने क्या बोला है, DI बोला है। ठीक है, तो DI क्या आएगा आपका, R1 माइनस में ए आई स्केयर प्लस में R2 माइनस में बी आई स्केयर, सारे का रूट। ठीक है, तो हमने इस केस में बिट एरर रेट निकालने के लिए एक इनडायरेक्ट अप्रोच को फॉलो किया है। वो इनडायरेक्ट अप्रोच के अंदर हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर की वैल्यू लिखी है अल्फा अल्फा थीटा डी मिन 2 इंटू में रूट ऑफ एन नोट। क्लियर। ठीक है, तो अब जो अल्फा है वो हमारा क्या है कि नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर पॉइंट, यानी कि आपके जो नियरेस्ट नेबर पॉइंट एज पर दी फिगर कितने हैं, क्योंकि सबसे छोटे वाला क्या है आपका D1 है, तो वहां से आपका नियरेस्ट नेबर पॉइंट कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। ठीक है, अगर हम इस फिगर को देखें तो मैंने क्या किया, हमने क्यूपीएसके का एग्जांपल शो किया है। क्यूपीएसके के अंदर आपके 4 फेसेस बनते हैं। ठीक है, उसकी एनर्जी क्या होगी, इस फेस में सेम होती है, रूट ऑफ ए बी रूट ऑफ ए बी। ठीक है, उसके बाद अगले वाले में एक अपोजिट हो जाएगा, अगले वाले में दोनों अपोजिट, और इसमें इसका रिवर्स अपोजिट हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर। तो आपने क्या किया, आपको पता है कि आपके इसमें हर केस में कितने अल्फा मिल रहे हैं। अगर मान लो ये नेबर पार्ट है, ये सबसे इसके नियरेस्ट है। ठीक है जी, अगर मान लो ये वाला नियरेस्ट है तो यहाँ कितने पॉइंट मिल रहे हैं, अल्फा इज इक्वल टू 2। लेकिन अगर मैं इस फिगर को देखती हूँ जो मैंने बनाई है, जहां मैंने कोऑर्डिनेट्स को अज्यूम किया है, वहां से सबसे मिनिमम डिस्टेंस किसका है, ये वाला है, और उस पे कितने कोऑर्डिनेट आ रहे हैं, फिर 2 आ रहे हैं। तो इन दोनों केसेस में आपके अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, आपकी 2 हो गई। यानी कि आपने नियरेस्ट पॉइंट देना है और वहां कितने कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अल्फा की वैल्यू मानी जाएगी। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है आपकी, 2 आ रही है। ठीक है,
क्लियर। तो वहां से आपने अल्फा की वैल्यू को अगर 2 पुट करते हो तो आपने डी मन को कैलकुलेट करने के लिए 2 कोऑर्डिनेट लिखे हैं। अब अगर आप इस फिगर को देखो तो इस फिगर के अकॉर्डिंग एक तो रूट ऑफ ई बी आ रहा है, एक कोऑर्डिनेट रूट ऑफ ई बी, रूट ऑफ ई बी, ठीक है। यानी कि ये मिनिमम डिस्टेंस हुआ इस फिगर के अकॉर्डिंग। तो मिनिमम डिस्टेंस में एक कोऑर्डिनेट आ रहा है रूट ऑफ ई बी, रूट ऑफ ए बी, और दूसरा नेबर जो मिनिमम डिस्टेंस के अकॉर्डिंग दूसरा कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है, रूट ऑफ ई बी माइनस ऑफ रूट ऑफ ई बी। तो ये मैंने दोनों कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू को यहाँ पे राइट कर लिया, ठीक है। अब आपने डी मिन का फॉर्मूला क्या लिखा है पीछे निकालने का, दैट इज आर वन माइनस में ए आई स्क्र प्लस आर टू माइनस में बी आई स्क्र सारे का रूट। तो आर वन क्या है आपका रिसीव्ड सिग्नल इस फिगर के अकॉर्डिंग रूट ऑफ ई बी, क्लियर, माइनस में क्या हो जाएगा रूट ऑफ ई बी इसका और इसका, रूट ऑफ ई बी माइनस ऑफ रूट ऑफ ई बी, फिर रूट ऑफ ई बी माइनस का माइनस हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, दोनों वैल्यू प्लस हो जाएंगी यहाँ पे, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, टू रूट ऑफ ई बी का स्केयर। अब स्केयर से स्केयर जब कैंसिल होगा तो आपका क्या आ जाएगा, टू रूट ऑफ ई बी आ जाएगा, ठीक है जी। तो आपने आपके डी मिन की वैल्यू आपने निकाल ली है एज पर योर टू कोऑर्डिनेट, दैट इज टू रूट ऑफ ई बी आ गया आपका, क्लियर। अब क्या करेंगे, जो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर का फॉर्मूला है वो क्या कह रहा है, दैट इज इक्वल टू अल्फा क्यू डी मिन बाय टू रूट ऑफ एन टी। अल्फा मिनिमम पॉइंट होते हैं जो आपके 2 आ रहे हैं हर एक कोऑर्डिनेट के, क्यू को क्यू लिखा आपने, इनटू में क्या लिखा है आपने, दैट इज इन फॉर्मूला डी मिन टू रूट ऑफ एन टी, और डी मिन की वैल्यू अभी आपने क्या निकाली है, टू रूट ऑफ ई बी। तो यहाँ मैंने टू रूट ऑफ ई बी लिखा बाय में टू रूट ऑफ एन नोट टी। अब इसको और सिंप्लीफाई कीजिए, सिंप्लीफाई करने के बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर कितना आएगा, टू क्यू टू ई बी बाय में एन नोट, ठीक है जी। यानी कि ये आपका अल्फा क्या है, जो आपने नियरेस्ट पॉइंट लिए हैं उस नियरेस्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग आपके कितने कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं, अगर वो 2 हैं तो वो 2 की फॉर्म में आ जाएगा, क्लियर है। लेकिन अगर मान लो अगर आप इन केस ऑफ फिर एम एरे या फिर और कोई क्यूपीएस के यूज करते हैं तो उसमें कोऑर्डिनेट की वैल्यू और भी क्या होती जाएगी, आपकी इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, एक्चुअल में कैलकुलेट क्या करना है, सिंबल एरर रेट, ठीक है। सो दैट इज अ फंक्शन फॉर योर फाइंडिंग सिंबल एरर रेट, दैट इज एरर फंक्शन ई बी बाय में एन नोट, ठीक है। तो अभी आपने एरर फंक्शन क्या निकाला है, दैट इज टू क्यू टू ई बी बाय में एन नोट, ठीक है। तो आपने जो एरर फंक्शन निकाला है वो सिंपली आप यहाँ पुट करवा दीजिए इसकी जगह। आपने एरर फंक्शन की वैल्यू जो भी निकाली है वो वैल्यू आप यहाँ क्या कर दोगे, पुट कर दोगे, ठीक है। यानी कि उसके कहने का मतलब ये है, सॉरी, अब आपने क्या किया, आपको पता है कि आपके सिंबल एरर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज एरर फंक्शन ऑफ रूट ऑफ ई बी बाय में एन नोट, ठीक है जी। लेकिन अभी आपने सिंबल एरर जो निकाला है वहां से आपकी वैल्यू आई है दैट इज टू क्यू टू ई बी बाय में एन नोट, ठीक है। यहाँ टू मिसिंग है तो आप मेंशन कर लेना, दैट इज टू क्यू टू ई बी बाय में एन नोट, ठीक है। तो यहाँ जब क्यू की वैल्यू पुट करोगे दैट इज इक्वल टू योर वन बाय टू, टू तो बाहर ही है, इनटू में यहाँ वैल्यू पुट होगी, क्यू की वैल्यू क्या है, वन बाय टू एरर फंक्शन ऑफ एक्स बाय में रूट टू, ये किसी एक्स कोऑर्डिनेट के ऊपर है, ठीक है जी। तो वो हम एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ नहीं लेके चल रहे, तो एक्स को यहाँ से रिमूव कर दो, ओनली क्या लिखोगे, वन बाय टू एरर फंक्शन ऑफ वन बाय रूट टू, ठीक है। तो जब आपने इस क्यू की वैल्यू को इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दिया, ठीक है, तो आपका एरर फंक्शन का फॉर्मूला क्या बन गया आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, दैट इज एरर फंक्शन ऑफ ई बी बाय में रूट ऑफ एन नॉट। सो दैट इज अ वैल्यू ऑफ योर सिंबल एरर रेट, क्लियर। सो आपने इस एरर रेट को विद द हेल्प ऑफ योर क्यूपीएस के आपने इस फैमिली को क्या किया है, कैलकुलेट किया है, ठीक है। अब हमने अगर मान लो वही चीज हमने एम एरे पीएसके के अंदर करना हो तो आप उस केस में क्या करेंगे, तो उसने उसी फॉर्मूले को, हमें पता है कि हमारा एंगल क्या है, टू पाई बाय एम इंटू आई, क्लियर। और आई की वैल्यू को आप वन बाय वन क्या कर रहे हो, वेरी कर रहे हो, ठीक है। जब आपने आई की वैल्यू को जीरो पुट किया तो पूरा का पूरा फंक्शन आपका क्या आ गया, जीरो ही आया, ठीक है जी, क्लियर, ठीक है। अब जब आप आई की वैल्यू को वन पुट करोगे तो वो क्या आ जाएगी, ये इंटू आई है, टू पाई बाय एम इंटू आई है, नॉट इक्वल टू हेयर, तो टू पाई बाय एम इंटू आई, आई की वैल्यू पुट वन पुट करोगे तो वो क्या आ जाएगा आपका, टू पाई बाय एम आ जाएगा, क्लियर, ठीक है। फिर आपने क्या किया, आपने जब टू पाई बाय एम पुट किया यहाँ पे तो उसने क्या किया है, मो हेलो, सो आपने इसमें क्या किया, इन एम एरे पीएसके के अंदर
अगर आपके पास एंगल की वैल्यू क्या है, दैट इज 2π/m इंटू में आई। तो फर्स्ट वैल्यू अगर आप आई की वैल्यू 0 पुट करते हो तो उस केस में क्या होगा, आपका एक कोऑर्डिनेट तो 0 पे ही आएगा, क्योंकि एंगल की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो एक कोऑर्डिनेट आपका किस पे आ गया, 0 पे आ गया, ठीक है। और दूसरे कोऑर्डिनेट में जब आपने आई की वैल्यू 1 पुट की तो दैट इज इक्वल टू योर 2π/m आ जाएगा, ठीक है। अगर वो कोऑर्डिनेट यहाँ 2π/m है तो इससे आगे वाले पार्ट में कितना होगा आपका, π/m। ठीक है, तो इन MRAPSK के अंदर क्या होगा, आपने फिर एक सर्कुलर कॉन्स्टेलेशन का डायग्राम बनाया, उस कॉन्स्टेलेशन के डायग्राम के अकॉर्डिंग आपका एक तो i इक्वल टू 0 जो पुट करोगे तो एक आपका जो कोऑर्डिनेट है वो यहाँ कहीं आएगा, जिसकी एनर्जी क्या होगी, √ES होगी, क्लियर। ठीक है, और दूसरा एनर्जी सिग्नल आया आपका यहाँ पे, ठीक है, यहाँ ड्रा किया है, जिसकी वैल्यू कितनी है, π/m। तो 0 से लेकर π/m के बीच में जो सिग्नल होगा दैट इज इक्वल टू यर 2π/m, क्लियर। ठीक है, तो 2π/m जो है वो उसका रेडियस शो करेगा 2π/m पे सेंटर पॉइंट पे। तो हमने क्या करना है, उस सेंटर पॉइंट से इधर वाला कोऑर्डिनेट, मतलब कि ये आपका एक पूरा सर्कल बन जाएगा, यहाँ सॉरी ट्रायंगल बनेगा फ्रॉम 0 टू π/m एंड π/m टू अगेन दिस वन, ठीक है। तो उसने इस पूरे को तो डी मिन बोला है, दैट इज द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम योर कोऑर्डिनेट, ठीक है। लेकिन जब हम आधा लेके चलेंगे, ठीक है, तो वो कितना आ जाएगा आपका, लाइक आधा लेके जाएंगे तो d min/2 हो जाएगा, क्लियर। ठीक है, तो हमने अगर ये ट्रायंगल ड्रा किया है, इट मीन्स हमारा पूरा एंगल आया 2π/m, अगर आधा लेके चलोगे तो वो π/m रह जाएगा, π/m प्लस π/m दैट इज 2π/m, क्लियर। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक एंगल जब आपने आई की वैल्यू 0 पुट की तो 0 आया, ठीक है, जब आपने आई की वैल्यू 1 पुट की तो वो क्या आ गया, 2π/m आ गया, क्लियर। ठीक है, तो उसके बीच का एंगल आपने क्या लिया, π/m, ठीक है। तो जब बीच का एंगल लोगे तो एक कोऑर्डिनेट इस एंगल से इस तरफ जाएगा और एक इस तरफ, एक इस तरफ आएगा। तो आप उसी तरह इसको मान के चलेंगे इन फेस और इसको मान के चलेंगे आउट ऑफ फेस, ठीक है। तो मैंने अब ये पूरा ट्रायंगल ड्रा किया है, ये वाला दिस वन, ठीक है, क्लियर। ठीक है, तो इस एंगल के अकॉर्डिंग क्या आ रहा है, नीचे वाला पूरा लेके चलते हैं तो π/m, इस तरफ एनर्जी सिग्नल क्या आ रहा है आपका, √ES, ठीक है। अगर पूरा डिस्टेंस आपका d min है मिनिमम, अगर हम आधा काउंट करके चले हैं तो कितना आ जाएगा, d min/2, ठीक है। तो हमने क्या किया, अगर आप इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग अगर आप साइन की वैल्यू निकालो तो साइन क्या होता है, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या आ रहा है आपका, d min/2, हाइपोटेन्यूज क्या आ रहा है, दैट इज √ES। तो वहां उसकी वैल्यू मैंने पुट कर दी, वहां से हमारे d min तो रहा नीचे, 2 नीचे आ गया, तो d min की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन ऑफ π/m इधर है, वो इस 2 √E से ES से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अभी मैंने पीछे एक फॉर्मूला लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर निकालने का, दैट इज अल्फा क्यू d min 2√n0। अल्फा क्या है, नियरेस्ट पॉइंट कितने हैं कोऑर्डिनेट के, ठीक है, जो आपके कोऑर्डिनेट नजदीक पड़ता है उसका नियरेस्ट पॉइंट कितना है। तो उसके नियरेस्ट पॉइंट कितने आ रहे हैं, अगर वो 2 है, ठीक है, दिस वन में भी क्या है, वो 2 है आपके, दैट वन और दैट वन, ठीक है, 2 नियरेस्ट पॉइंट आ रहे हैं। तो क्यू की वैल्यू कितनी है, सॉरी अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 इंटू में क्यू, और डी मिन की वैल्यू भी आपने कैलकुलेट की है, वो वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी, अपॉन में 2 रूट ऑफ n0 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या किया, 2q√ES बाय में इसको अगर आगे सिंप्लीफाई करोगे तो तेरे साइन π/m आ जाएगा, क्लियर। तो हमने सिंपली क्या किया, उसी फॉर्मूले को अप्रोक्सीमेट करके इस फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। अब अगर ये तो है इन केस ऑफ ईयर अगर आपका अल्फा 2 है, सॉरी, ठीक है, तो लेकिन अगर इस फिगर में देखें तो आपका अल्फा जो नियरेस्ट पॉइंट है वो ओनली 1 वैल्यू से आ रहा है, 0 वैल्यू है, और यहाँ पे π/m है, यानी कि उसके कोऑर्डिनेट कितने आ रहे हैं, ओनली 1 आ रहे हैं। तो अगर वो 1 है तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 1 हो जाएगी इन केस ऑफ ईयर बीपीएस के, बाइनरी फेज शिफ्टिंग, नोट हियर बीएसएस के, दैट इज बीपीएस के। अगर ये क्यूपीएस के होता तो यहाँ पे नियरेस्ट पॉइंट कितने आते, 2 आते, तो यहाँ हम क्यू की वैल्यू कितनी लिखते, 2 लिखते, जो हमने पीछे करके बताई है क्यूपीएस के केस में। तो ये आपका फॉर्मूला इन केस ऑफ क्या बन जाएगा, आपका बीपीएसके की फॉर्म में बन जाएगा, क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट विद योर ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन ऑफ योर सिग्नल. So geometric interpretation of signal, that is also in case of your M energy signal I am taking first, then you can number of possible transmitted signal कितने हो सकते हैं. With the help of these
these two things we can calculate the geometric interpretation of your signal. So as per know your minimum possible energy of the signal, that is xit, I is equal to 1 to m. क्लियर. सो अगर आप x1 को खोलेंगे तो यहाँ पे x1 x2t अप टू क्या बनेगा आपका xmt. हियर वी शो कैपिटल m, नॉट स्मॉल m हियर. ठीक है. n क्या है? n इज द नंबर ऑफ ऑर्थोनॉर्मल बेसिस फंक्शन. ऑलवेज जो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस फंक्शन होंगे वो आपके इस केस में n इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू m होगा. ठीक है जी. तो उसने क्या किया, वही ट्रांसमिटेड सिग्नल जो आपने पहले यूज किया है, एक्स आपका ट्रांसमिटेड सिग्नल क्या होता है, दैट इज x1t x2t, यानी कि xit i1 और xi2. ठीक है, ये आपके ट्रांसमिटेड सिग्नल है. ठीक है. अगर वो किसी कैरियर के साथ मॉड्यूलेट हो रहे हैं, ठीक है जी, तब वो कुछ एंगल बनाएंगे. प्लस क्या लिखा है, वही सेम खोला तो ये क्या बना x1 फाइव, जो एंगल बनेगा 5 1 से स्टार्ट हो अब तक कहाँ तक चला गया 5 nt तक बन गया. ठीक है जी. तो इट मीन्स अगर इस एक्सप्रेशन को आप अगर इस फॉर्म में लिखते हो तो कैसे लिखोगे, x ऑफ it एज पर योर ऑर्थोनॉर्मल प्रॉपर्टी j इज इक्वल टू 1 to n x ij इंटू में 5, क्योंकि हर बार x का वैल्यू 5 से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है. तो x i की वजह से तो i वेक्टर आ गया और j की वजह से 5 के वेक्टर को हमने j ले लिया. तो उसने फॉर्मूले को कुछ इस तरह से लिख दिया, दैट इज x i j 5 i j इंटू में t. ठीक है. सो दैट इज कॉल्ड योर सिंथेसाइजर और योर ट्रांसमिट ब्लॉक, यानी कि ट्रांसमिट ब्लॉक से आपका ये चीज जाएगी. ठीक है. दैट इज योर इनपुट सिग्नल और दैट इज योर कैरियर फेसेस. ठीक है. ठीक है. फिर हमने क्या किया, जो आपके इनपुट सिग्नल हैं, अगर हम इन वैल्यूज को खोलते जाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपके इनपुट सिग्नल क्या बनेंगे, जे की वैल्यू को वेरी करोगे. एक वैल्यू एक्स, जे की वैल्यू कहाँ तक वेरीगी, फ्रॉम 1 to m तक वेरी करेगी. तो आपके सिग्नल क्या आ जाएंगे, एक्स आई वन एक्स आई टू अप टू एक्स आई एन. क्लियर. तो ये फॉर्मूला मैंने इस फॉर्म में लिखा हुआ है. अब जब वो मॉड्यूलेट होगा, किसके साथ मॉड्यूलेट होगा, किसी एंगल के साथ मॉड्यूलेट होगा, क्योंकि हम एम आर ए पी एस के की बात कर रहे हैं. तो ये एरे बन गया. ठीक है. एरे ऑफ पी एस के. ठीक है. तो ये एंगल क्या बनेगा आपका 5 1t 5 2t अप टू में 5 n t. ठीक है. जब ये आपका इनपुट सिग्नल कैरियर के साथ मॉड्यूलेट हुआ विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर, बाद में जब सबमिशन होगा तो ये क्या बन जाएगा आपका अगेन एक्स आई टी विच आर प्रेजेंट हेयर. So we are taking the example of your binary ASK. In binary ASK, we are having two coordinate. One is called your EB, root of EB 5 1t. अगर रूट ऑफ ई बी इंटू में 5 1t आता है तो उसको हम 1 से रिप्रेजेंट करेंगे. अगर 0 आता है तो उसको हम 0 से रिप्रेजेंट करेंगे. इन केस ऑफ बी ए एस के, क्योंकि उसके अंदर एम्पलीट्यूड वेरी करता है, फेस वेरी नहीं करता. लेकिन अगर आपका एंगल वेरी कर रहा है तो एक एंगल ई बी आता है और एक क्या आता है, रूट ऑफ ई बी आता है. तो वो किस केस में आता है आपका बीपीएस के केस में. तो बीपी के केस में अगर आपका एंगल प्लस में आ रहा है, ठीक है, 5 1t प्लस में आ रहा है, तो वो +1 को रिप्रेजेंट करेगा. अगर वही एंगल माइनस में आ रहा है तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, आपका 0 को रिप्रेजेंट करेगा. तो दैट इज इन द केस ऑफ योर बाइनरी एएसके एंड दैट इज इन द केस ऑफ योर बाइनरी एफएसके. क्लियर. सो उसी फॉर्मूले को मैंने फिर अगेन रीराइट किया है, दैट इज एक्स आई टी इज इक्वल टू फ्रॉम समेशन ऑफ j इज इक्वल टू 1 to n, दैट इज रिप्रेजेंट योर एंगल 5 ij इंटू में सॉरी एक्स आई जे 5 ij इंटू में t. ठीक है. अब रिसीव्ड सिग्नल जो मुझे मिलेगा वो क्या मिलेगा, हर बार रिसीव्ड सिग्नल किसी एंगल से मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट इज अ मल्टीपल ऑफ एंगल विद द, नहीं सॉरी, आपने रिसीव्ड सिग्नल तो मिल गया आपको विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर, लेकिन जब वो आपका उसके बाद किसके पास गया है, इंटीग्रेटर के पास गया है, तो इंटीग्रेटर के पास जाने के बाद उसके अंदर एक टर्म ऐड हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड योर फाई ऑफ के. हियर इनपुट सिग्नल क्या हो जाएगा आपका, रिसीव सिग्नल 5 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा. ठीक है. ठीक है. तो आपने इनपुट सिग्नल को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 5 के आपके इस होल टर्म के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा. तो अगर x1t इंटू में क्या हो जाएगा 5kt, इसका इंटीग्रेशन किया फ्रॉम 0 to t, यानी कि अगर हमारा जो रिसीव्ड सिग्नल है, अगर मैंने इसको दोबारा से, ये प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर की आउटपुट आ रही है, ठीक है, प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर के बाद हमें ये आउटपुट मिल रही है ट्रांसमिटेड सिग्नल की, सॉरी रिसीव्ड सिग्नल की. ठीक है. उसको हमने आगे हमने इसको दिया, इंटीग्रेटर को दिया है, तो इंटीग्रेटर में देने पर उसमें एक टर्म ऐड हो गई, तो उसका इंटीग्रेशन हुआ फ्रॉम 0 to t, फैक्टर क्या था एक्स आई टी, ठीक है, इंटू में 5kt इंटू में dt, और यहाँ पे रिसीव सिग्नल क्या मिल रहा है, एक्स आई जे इंटू में 5j t इंटू में क्यू के, एक वेक्टर ऐड हो गया इंटू में dt. ठीक है. तो ये दोनों क्या है, ऑर्थोनॉर्मल है. क्यों, क्योंकि j इज नॉट इक्वल टू k. अगर j की वैल्यू
k के इक्वल नहीं है तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ओनली क्या रह जाएगा आपका, एक्स आई जे। क्लियर। लेकिन अगर j की वैल्यू k के इक्वल है तो दैट इज कॉल्ड योर ऑर्थोगोनल। और अगर आपका j इक्वल टू के नहीं है तो ये वेक्टर जीरो हो जाएगा। सॉरी, j इक्वल टू के इक्वल नहीं है तो वैल्यू जीरो होगी। लेकिन अगर j इक्वल टू के है तो ये क्या बनेगी आपकी ऑर्थोनॉर्मल, तो ये वेक्टर आपका वन में चेंज हो जाएगा। अगर ये वेक्टर वन में चेंज हो रहा है तो वन इंटू में एक्स आई जे बन जाएगा। ठीक है जी, व्हेन j इज इक्वल टू के। तो यहाँ पे ओनली क्या फैक्टर रह जाएगा, एक्स आई जे रह जाएगा। तो इस तरफ क्या बनेगा आपका, जीरो टू टी एक्स आई टी इंटू में फाइव के टी डी टी व्हेन j इज इक्वल टू के, है ना। तो ये चीज आ जाएगी। अब यहाँ पे इसी टर्म्स को, ये एक्स आई जे की फॉर्म में आई है, अगर उसी टर्म को हम एक्स आई के की फॉर्म में निकालें तो फाइव जे की जगह फाइव के हो गया और एक्स आई जे की जगह एक्स आई के हो गया। क्लियर। So that is the output of your receiver, or you can say receiver analyzer in the form of xt phi j t into में dt और इधर xit phi k t into में dt। ठीक है, तो जो रिसीव्ड सिग्नल मिला है उसके अंदर हमें दो कोऑर्डिनेट मिल गए हैं, कौन कौन से, फाई जे एंड फाई के। क्लियर, विद द हेल्प ऑफ योर प्रोडक्ट मॉडुलेटर। ठीक है जी, तो उसने क्या लिखा है, उसी रिसीव्ड सिग्नल को अगेन उसी टर्म में लिख के उसने बोला है कि फाई जे और फाई के जो दो टर्म मिली हैं उस टर्म में अगर इक्वल टू नहीं है तो जीरो है, अगर इक्वल है तो क्या फंक्शन हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सॉरी, ये आई कैन रिपीट, सॉरी। तो उसके बाद वही सेम चीज उसने क्या किया है, नंबर ऑफ वेक्टर को इंटीग्रेटर को दिया है, फिर उसने क्या किया है यहाँ पे, उसको उन वेक्टर्स को उसने खोला है। सो अगर रिसीव सिग्नल में कई बार नॉइज भी ऐड हो जाती है तो उसने अगर इनपुट सिग्नल को वेरियस वेक्टर में खोला तो एक्स आई वन एक्स आई टू अप टू एक्स आई एन बना। ठीक है, एक्स आई वन की एनर्जी क्या है, रूट ऑफ ए बी माइनस ऑफ रूट ऑफ ए बी इन केस ऑफ योर बीपीएस के, और इन केस ऑफ योर बीएस के दैट इज जीरो एंड रूट ऑफ ई बी आ जाती है। क्लियर। तो अगर हम एनर्जी सिग्नल निकालें तो वो सेम जो एक्सप्रेशन अपने पहले लिखा एनर्जी सिग्नल निकालने का फॉर द नॉइज कैलकुलेशन के लिए, एक्स वन टी का स्केयर इंटू में डी टी हो गया। ठीक है, अब एक्स आई टी अभी भी निकालना है, वो आपका कितना आया है, दैट इज एक्स आई जे फाइव जे टी अगेन एक्स आई के फाइव जे टी इंटू में डी टी। ठीक है, तो सिंथेसाइजर ब्लॉक की आउटपुट ये वाली आ रही है आपकी। ठीक है, तो जब आपने इस फंक्शन को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो आपकी टू समीशन टर्म आ रही है, उसको आपने एक को लिखा है जे इजिकल टू वन टू एन और एक को क्या लिखा है के इजिकल टू वन टू एन। ये के की वैल्यू आपकी रिसीव सिग्नल के बाद ऐड हो गई है आफ्टर इंटीग्रेशन के बाद। और आपने जब ये जो है ये है ट्रांसमिटेड सिग्नल आफ्टर प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर, फिर ये वाला क्या है ट्रांसमिटेड सिग्नल आफ्टर कौन सा, लाइक आपका सिंथेसाइजर और इक्वलाइजर यू कैन से आफ्टर इंटीग्रेशन। आपने इन दोनों टर्म को कंबाइन किया विद हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन तो आपकी ये टर्म आ गई। तो इस टर्म के अंदर अगर j इज इक्वल टू के है तो एज पर दी ऑर्थोनॉर्मल प्रिंसिपल ये पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा आपका, वन हो जाएगा। ठीक है, और एनर्जी सिग्नल की वैल्यू क्या आ जाएगी, फ्रॉम j इज इक्वल टू वन टू एन एक्स आई वन का स्केयर। ठीक है, क्योंकि j इज इक्वल टू के होगा तो ये एक्स आई के एक्स आई जे बन जाएगा, एक्स आई जे बनेगा तो क्या लिखा जाएगा, एक्स आई वन का स्केयर बन जाएगा। क्लियर, एक्स आई जे। ठीक है, अब आप j की वैल्यू पुट करोगे तो एक्स आई वन एंड एक्स एक्स आई टू अप टू एक्स आई एन का स्केयर तक बनेगा। उसका आपने मॉडुलस लिया तो एक्स आई का मॉडुलस हो जाएगा ये वाला टर्म। ठीक है, इट मीन्स क्या हुआ, एनर्जी ऑफ ith सिग्नल दैट इज स्क्वेयर्ड विद ऑफ सिग्नल वेक्टर। क्लियर, सो दैट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ योर सिग्नल। क्लियर। अब अगर इसके बाद अगर आपको कुछ डाउट रहता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ योर होल ऑफ दिस lecture. I can discuss here various symbol error rate, probability of error, and you can say last one is called your interpretation of signal with more carefully. You are having with any doubt, you please ask me. Thank you for listening my lecture.